Physiologically, one important aspect of you is your heart, the pumping station for your blood circulation which pumps life across the body. If this one thing doesn't happen, nothing happens. This starts from left side. So we told you, in India they have told you, when you wake up, you must roll to your right side and get up. Have they? Left side, if you roll and get up, bad things will happen to you. Did they tell you? Bad things are not about that. When you're in a certain state of relaxation, when the body is in a relaxation, the metabolic activity is low. When you get up, there is a certain surge of activity. That's why they told you in India, see, all these things are built into your life which you're throwing away. The whole science of living has been built into your life. They told you in the morning before you wake up, you must rub your hands together and see like this, huh? Not see like this, you must place it upon your eyes. You do this, you will see God. It's not about seeing God. If you rub these two things together, all the nerve endings, there's a heavy concentration of nerve endings in your hands. If you do this, the system comes awake immediately. You're feeling asleep, you're feeling sleepy, just do this and see, everything comes awake. So morning before you move your body, you get it awake first and then place it upon your eyes. Instantly a whole range of nerves connected with your eyes and the other aspect of your senses come awake. Before you move your body and your brain should be active. You shouldn't get up dumb, that's the idea. Understand? So you do that and then roll over to your right and get up. What kind of sounds come awake to will determine the context of the day and the future of your life in many ways. So coming awake to an alarm bell with a sudden start is not the best way to do your life. It is best that if you need a certain amount of if your body right now, because of the kind of food that you consume and the kind of thoughts and emotions that you process within yourself, accordingly you may… and the level of vibrance that you have managed within your body will determine how much sleep you need. Let us say you need let's say you need 8 or 12 hours of sleep. I was saying the wrong number Whatever amount of sleep you need, you know how much you need. So you go to bed early enough so that you come awake naturally. If you're coming awake naturally and suppose you have a doubt whether you will come awake or not, if you have a certain chant, if you've identified one of the Vairagya chants, you can use it. Many problems that human beings are suffering is simply because we have lost that awareness as to how to be in sync with the many forces. If you become in rhythm with life, you will also wake up somewhere after 3 a.m. At that time, if you sit up and do whatever process you have been initiated for, it will bear maximum fruit. In the way the planet is spinning and what is happening, something very fundamental changes somewhere between 3:20 to 3:40. This is called Brahma Muhurtam. This is relevant only up to 33 degrees latitude. Your system, human system, functions in a certain way. It is a possibility. So, there has been an awareness about making use of this possibility. Your life is a product of many things that we call as the universe, many things that we call as existence. So we are a consequence of a certain phenomenal happening that we call as cosmos. We are not an individual existence.
So when you get in sync, certain things will happen. All the many ailments, many problems that human beings are suffering is simply because we have lost that awareness as to how to be in sync with the many forces which are making us who we are. So yoga is to bring that sync so that you are in rhythm with life. If you become in rhythm with life, you will also wake up somewhere just after 3 a.m. If you're conscious, suddenly a certain spark of aliveness will happen within you. Even if you're in deep sleep, you will come awake. This must happen to you. This means you're falling in sync with it. You're falling in sync with life. Today, if all of us go to bed, by tomorrow morning, nearly 250,000 people won't wake up. Natural death in the world. Suppose you wake up tomorrow, you guaranteed? Have you come with a guarantee card? No guarantee card. So suppose you wake up, let's say. Just do this much, I'm telling you, this is a simple first step to your spiritual process. Tomorrow morning, when you come awake, check, you really awake or you dead? If you're awake, it needs at least a little celebration. You don't have to get up and dance, at least you can smile, still on. 250,000 people died. They were like you and me, poof, they went off, isn't it? Wherever you look, they're not there. Here I am still, alive. One big smile, will you? I'm talking management. Then if 250,000 people died, at least 3 to 5 million people lost somebody who's dear to them. You check those 3, 4, 5 people who matter to you, all of them alive today. One more big smile. Hello? Will you or not? Alive. If suppose right now, we put a gun to your head, will you think it's a relief? No. You'll be terrorized, isn't it? So that's how precious it is to be alive, isn't it so? That's how precious it is for you to be alive. So tomorrow morning, 250,000 people died overnight, but you're still alive. Does it not at least deserve a big smile, I'm asking you? And all the people who matter to you are all alive today. One more big smile? जो व्यक्ति इन साधनों को इस्तेमाल करना सीख लेता है अपनी इच्छा से, कुशलता से, वो स्वाभाविक रूप से एक असरदार मनुष्य बन जाएगा। इंसान एक संभावना है, आप इसे एक ऊंची संभावना बना सकते हैं। अगर ऐसा होना है तो हमें साधनों पर थोड़ी धार देने की जरूरत है। साधना पद का मतलब है साधन यानी उपकरण, पद यानी वो समय जब हम साधन तैयार करते हैं। हमारे पास कौन से औजार हैं? अगर आपका स्क्रू ढीला है तो शायद आप एक पेचकस या पाना लेकर चलें। Otherwise, as a human being, the only tools that you have is your body, your mind and your energies. These are all the tools you have. वरना एक इंसान के रूप में आपके पास जो औजार हैं वे सिर्फ आपका शरीर, मन और आपकी ऊर्जाएं हैं। आपके पास यही साधन है। जो व्यक्ति इन साधनों का इस्तेमाल करना सीख लेता है अपनी इच्छा से, कुशलता से, वो स्वाभाविक रूप से एक असरदार मनुष्य बन जाएगा। जो व्यक्ति
शरीर या मन या ऊर्जाओं का सचेतन और अच्छा उपयोग करना नहीं सीखते, वे हमेशा सोचेंगे दुनिया में नाइंसाफी है, ओह दूसरे भाग्यशाली हैं, मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान हूं पर सभी उसका साथ देते हैं। हम हमेशा यही कहानियां सुनते हैं। आप अपने जीवन में असफल होकर कई कारण और फिलॉसफी बता सकते हैं, या आप एक सफल मनुष्य हो सकते हैं। बस यही दो तरीके हैं। बस यही विकल्प है। जिन्हें अपने आप में या दुनिया में सफलता नहीं मिलती, उन्हें हमेशा शिकायत होती है, मैं ऐसा इसलिए हो गया हूं क्योंकि मेरे पिता का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। जब आप ऐसे हैं तो वे आपके साथ अच्छा बर्ताव कैसे करेंगे? मैं आपके साथ कठोर होने की कोशिश नहीं कर रहा, पर अगर आप बचपन में ही शैतान और खराब हैं, तो आपके पिता दोगुने कठोर और खराब होंगे। मैं उनकी उम्र के हिसाब से कह रहा हूं। हेलो, उन्होंने आपसे ज्यादा जीवन देखा है ना? हेलो, शायद जीवन ने उनको आपसे कहीं ज्यादा परेशान किया हो और उन्हें आपको भी झेलना पड़ा। ये एक चीज, अगर आप साधना करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में इन 3 बुनियादी उपकरणों शरीर, मन और ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज हम आपके भीतर इसे उतार रहे हैं इनर इंजीनियरिंग के पहले दिन से ही, कि मेरे भीतर बाहर जो कुछ भी होता हो, अच्छा होता हो, बुरा होता हो, सुंदर चीजें होती हों, घिनौनी चीजें होती हों, जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है? हेलो, क्या आपने अपने भीतर यह समझ लिया है? अगर सफलता मिलती है तो वजह मैं हूं, अगर नहीं मिलती तो भी वजह मैं हूं। क्या आपने यह समझ लिया है? सदगुरु, हमें लगा कि ये काम आप हमारे लिए करेंगे। व्यक्ति को अपने जीवन में इसे जल्दी ही ठीक कर लेना चाहिए कि आप खुद अपने जीवन में कभी समस्या ना बने। आपका शरीर, आपका मन, आपकी ऊर्जाएं कभी समस्या ना बने। बाहर कुछ समस्याएं होंगी, पर हम उन्हें संभाल सकते हैं अगर ये कोई समस्या ना हो। आपके जीवन की हर चुनौती में जब यही एक समस्या होगा, तो आप सिर्फ चुनौतियों से दूर भागेंगे। अगर आप चुनौतियों से भागेंगे, तो जीवन की सभी संभावनाओं से चूक जाएंगे। आप बस ताइर सदम बनकर रह जाएंगे। क्या वो आपको ताइर सदम दे रहे हैं? उम्मीद करता हूं नहीं दे रहे। सबको पता है कि ये आलस पैदा करता है। तमिलनाडु में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल से टीचर्स हमेशा देखते हैं कि अगर कोई सुस्त है तो वे कहते हैं, जिसका मतलब है क्या तुम दही चावल खाकर आए हो? तो वे जानते हैं कि यह सुस्ती पैदा करता है। पर सिर्फ विद्यार्थी ही खाकर नहीं आते, शिक्षक भी खाकर आते हैं। तो सुस्ती एक शानदार चीज है। ये कई समस्याओं से बचाती है, क्योंकि आपको यह भी पता नहीं होता कि कोई समस्या भी है। ये देखने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए कि क्या गलत है। सब कुछ ठीक है।
समस्याओं से मुक्त रहने के दो तरीके हैं। किसी ने कहा है, मुझे याद नहीं किसने, पर यह कहा है, फरिश्ते समस्याओं से अछूते होते हैं उनकी प्रतिभा के कारण, और जानवर समस्याओं से अछूते होते हैं प्रतिभा की कमी की वजह से। पर इंसान बीच में झूलता रहता है और संघर्ष करता है, क्योंकि वो अभी भी एक संभावना है, अभी एक वास्तविकता नहीं बना। इंसान एक संभावना है। आप इसे एक ऊंची संभावना बना सकते हैं, या आप इसे निचली संभावना तक धक्का दे सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से अपने शरीर, मन और ऊर्जाओं का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप उनका प्रयोग करेंगे या क्या वे आपका उपयोग करेंगे, ये एक सवाल है। जब मैं कहता हूं कि वे आपका उपयोग करेंगे, तो बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना लोगों को नीचा समझे, बस ध्यान से देखिए, लोगों के जीवन में क्या प्रतिबद्ध है। धरती के ज्यादातर लोगों की जिंदगियां उनके शरीर, उनकी मानसिक जरूरतों, भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने की ओर प्रतिबद्ध है। बस यही है। हेलो, उनके पूरे जीवन का आयोजन बस इसी के लिए है। आप इसे बिजनेस कह सकते हैं, करियर कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, पर सिर्फ जरूरतें पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक जरूरतें पूरे जीवन का बंदोबस्त किया जाता है ना? कृपया आप मुझे बताइए, मैं आपकी राय से चलूंगा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, यह सही है। ये शरीर विज्ञान और ये मनोविज्ञान यहां आपकी सेवा के लिए है या आप उनकी सेवा के लिए? हाँ? वे हमारी सेवा के लिए हैं। But most human beings are serving them their entire life. पर ज्यादातर मनुष्य उनकी सेवा कर रहे हैं पूरी जिंदगी। नाश्ता खाते समय वे दोपहर के भोजन की योजना बना रहे होते हैं। दोपहर का भोजन करते समय वे रात के खाने की योजना बनाते हैं। तो बस खाने, मकान, सुरक्षा, एक दूसरे के प्रति भावनाओं की बातें होती हैं। वाकई पूरा जीवन बस शारीरिक और मानसिक जरूरतों के इर्द गिर्द घूमता है। इसे ही सामान्य जीवन कहा जाता है। तो मेरा इरादा है कि आप असामान्य हो जाएं, कि आप अपने शरीर और मन का उपयोग करके इस जीवन का विकास करें, जीवन को गुलाम ना बनाएं। अगर ऐसा होना है तो हमें साधनों पर थोड़ी धार देने की जरूरत है। नहीं तो सुबह 5 बजे शरीर कहता है बकवास, चुपचाप सो जाओ। मैंने सोचा जो लोग मरना चाहते हैं वे ऐसे होते हैं, पर जो लोग जीना चाहते हैं वो ऐसा क्यों करेंगे? हेलो, जो लोग मरना चाहते हैं वे अपनी आंखें बंद करेंगे। जो लोग जीना चाहते हैं उन्हें सूरज की पहली किरणें देखने के लिए उठ जाना चाहिए, इससे पहले कि किरणें धरती तक पहुंचे। आपको सबसे पहले सूरज की किरणों को देखना चाहिए, ना कि कीड़े मकोड़ों को, ना कि पक्षियों को, ना कि घास की पत्तियों को। आपको सूरज की किरणों को देखना चाहिए। रोज अगले 2 सप्ताह के लिए सूरज की पहली किरणें अपने शरीर पर पड़ने दीजिए और देखिए क्या होता है। आप एक बिल्कुल अलग जीवन जिएंगे।
When will you learn how to handle my thought, how to handle my emotion? We will give you tools, how to figure this machine out. Whatever the issue, we'll do our best. But this should not be the issue. In life, there are many phrases where we feel that we are depressed, we are lonely, and when everybody is against us, and there is no one to, guide us or talk about it. So at that moment, how should we handle it or how should we deal with it? See, this is an unfortunate condition that a whole lot of human beings are in their experience. In their personal experience, life is like me versus the universe. Being in competition with the universe is a stupid thing to do. That's not a competition you must get into. Hello? Me versus the universe is a bad competition to get into. Would you also agree with me? So, this is why yoga does not mean twisting and turning your body. The word yoga means union. Right now it's me versus the universe. This is just your psychological condition. This is not the reality. Even when you feel utterly lonely, are you still breathing? So you're transacting with the world, isn't it? Yes? You only can't get along with the people around you, but atmosphere is okay with you, food is okay if it tastes good, water is okay. You have transaction with the world, isn't it? Your existence is constantly an engagement with the universe, but your mind becomes against the universe. If you create a psychological condition that you're against or you're in competition with the universe or the cosmos, obviously you will feel crushed for small things. Little things will crush you. When I say little things, maybe you failed your examination, maybe you got thrown out of this university, maybe you got fired from a job, maybe somebody ditched you, maybe something else like this happened. These are all small things between life and death. Because you came here with nothing, isn't it? When you die, there is no container service for you. You die with nothing. In spite of that, most people have turned their homes into warehouses. Most people are carrying such a huge baggage on their head, as if they're carrying the whole universe on their head. This is their own psychological condition. Your thought and emotion is what you're talking about, right? When are you going to figure out how to handle your thought and emotion? Not hers, not hers, not his, yours. When are you going to learn how to handle my thought and my emotion? At the end of your life? The only problem really with life is just this. Most human beings have taken themselves too seriously. They don't understand. You've seen on the computer screen these pop-ups? Yes. You are a pop-up on this planet. You pop up for 2 seconds and pop out. No, you must see, countless number of people like you and me have walked this planet. They were also big people. Where are they? All topsoil? Topsoil or no? Unless somebody, your friends decide to bury you real deep, fearing that you may rise from the dead. There have been such instances. Or maybe you're planning to go to heaven. Hello? Anybody who talks about a place other than this place as a better place than this is a crime against humanity. My fundamental work is to destroy all heavens so that people will learn to live well here. All these idiots who made a hell out of themselves, they want to go to heaven. They made a mess out of this place and then they want to go to heaven. I'm asking you, do you have any proof? Do you have any proof that you are not already in heaven and messing it up? Do you have any proof? You're already in heaven, making a mess out of it. Yes, simply because
you are not even learning how to handle your basic faculties of thought and emotion, isn't it? Your only justification is, everybody is like this only, that's how it is in a madhouse. That is how it is in a madhouse, only a doctor looks crazy. So when are you going to handle it? Slowly, at the age of 60? I'm asking. When will you learn how to handle my thought, how to handle my emotion, how to handle my body, how to handle my chemistry? When are you going to figure this? At the end of your life? Because this culture has grown, when to do spirituality means when you're 70, when you're no good for anything else. No, at the earliest possible time, whatever is most profound about you, not about heavens, about this life, everything that you need to know, you must know soonest, isn't it? Only then you will live a sensible life. Okay, if I tell you a joke, you won't get offended. Because this is the most serious crowd I've ever seen in the last few years. How many of them are journalism? Most of them? Okay. This happened. Shankaran Pillai, when he was in Paris, was married to a French woman. One day, it was their anniversary, first anniversary. So she invited a bunch of friends and she wanted to cook something really fresh, everything fresh. So from morning, she was driving him to this market, that market, he got this fresh vegetables, fresh meat, fresh chicken, this, that, everything. Then in the evening she said, because the French have this, snail appetizer, she said, go to the beach and get some snails, fresh, and I will make some appetizer for all the friends who are coming. So Shankaran Pillai went to the beach and he was picking up all the snails and putting it in a bucket. Then he met an old friend, an Indian guy. They hit it off and they were talking about their old times. He just forgot that he's married. You know, when you meet old friends, it happens. And both of them went to a bar and they had a few drinks and he just forgot. Then he realized, then the snails were just climbing out and one snail fell out of the bucket. He realized, oh my God, I'm supposed to take these snails, my wife, French wife. She's waiting. So he said, I need to go, and he went. By then it was already very late. He went, he knew it's not going to be pleasant. So he came near the house and spilled all the snails on the ground, threw away the bucket and went and knocked on the door. The French fury came. He turned back and said, come on you guys, we're almost there, come on, let's go. So, when are you going to pick your snails and put them in the bucket and fix them? Huh? Your problems, you must fix them, isn't it? These are not problems. I want you to understand, you are not suffering your life. You're only suffering two fantastic faculties that only… It's a privilege of being human that we have these two fantastic faculties. One is, we have a vivid sense of memory. This is because of this memory our life is so rich, unlike any other creature. And we have a fantastic sense of imagination. Now, this is what you're suffering. What happened 10 years ago, you can still suffer. Why? Are you suffering life or memory? Hello? Memory. Memory. What may happen day after tomorrow, you're already suffering? Are you suffering life or imagination? Imagination. Two most fantastic faculties you have, you're suffering. So what are you asking for? You want to become once again an earthworm. An earthworm is a very eco-friendly creature, I have nothing against it. But it took millions of years of evolution to get you this size of brain, and now you're suffering it. If we take away half your brain,
of course you will sit there without any anxiety, without any suffering, peacefully. What we need is, we need to remove your brain, because you are suffering your own intelligence. Yes or no? Yes. Because we gave you a very complex machine, you have not bothered to read even the user's manual. You want to just blunder around. No, young people, it's time you figure out a few things about you. If you don't know how, we will give you tools how to figure this machine out, because in your life, many issues will come. More issues come up in your life means you're living a more active life. Nothing came up means you're not living. Yes? Lots of issues every day. I have the maximum number of trouble going on in my life on a daily basis, because so much of activity around the world, global level of activity only with volunteers, okay? Volunteers means nobody is qualified for the job and you can't fire them for inefficiency and they love you, what to do? This one thing you must fix, that is, in your life, you are not the issue, okay? Whatever the issue, we'll do our best, but this should not be the issue. ये आपके स्कूल में हुआ, शायद बाद में कभी यूनिवर्सिटी में या नौकरी के दौरान, ये लोगों के साथ हो रहा है, शायद सबके साथ नहीं पर बहुत से लोगों के साथ। सक्सेस के लिए उनकी कमिटमेंट या प्रतिबद्धता कमजोर है। वो कामयाबी चाहते हैं, वो 3 कदम लेंगे, फिर यहाँ कुछ दिलचस्प हुआ तो इधर चले आएंगे, वहां चले जाएंगे, उधर जाएंगे, अरे मैं जीना चाहता हूं। सक्सेस के लिए उनकी कमिटमेंट कमजोर है, या तो उनके आसपास के हालात किसी भी तरह से, आप जो कर रहे हैं हालात बहुत आसानी से आपको वो करने से रोक सकते हैं। कई बार सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो लोग सक्सेस के लिए अपनी कमिटमेंट को कमजोर कर देते हैं। हो सकता है कि शारीरिक रूप से वो थोड़ा कमजोर महसूस करें, वो सक्सेस के लिए अपनी कमिटमेंट को कमजोर कर देंगे। हो सकता है कि उनकी भावनाएं थोड़ी भटक जाएं, वो सक्सेस के लिए अपनी कमिटमेंट को कमजोर कर देंगे। तो सक्सेस के लिए हमारी कमिटमेंट कम नहीं होनी चाहिए, चाहे सामाजिक नाटक चल रहा हो या शारीरिक नाटक या मनोवैज्ञानिक नाटक, जो भी हो। Your commitment to success should not weaken. That is what get you across so many lines in our life, so many barriers in our life. सक्सेस के लिए आपकी कमिटमेंट कम नहीं होनी चाहिए। यही वो है जो आपको जीवन में इतनी सारी सीमाओं के, कई सारी बाधाओं के पार ले जाता है। तो सक्सेस कैसी होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको ये समझना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने नहीं तो सक्सेस आप जानते हैं। कमिटमेंट मैं हम नहीं, किसी का भी व्यक्तिगत उदाहरण नहीं लेना चाहता। मैं उन जाहिर सी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। Well, आप जानते हैं, मैं ऐसे परिवार और दोस्तों को जानता हूं जो हमेशा अपना नाश्ता समय पर करते हैं और नाश्ते के बाद बेशक उन्हें कॉफी पीनी है, कॉफी के बाद पक्के से उन्हें एक सिगरेट जलानी है और फिर अच्छे से बैठते हैं क्योंकि वो शांत होने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो काम पर जाएंगे, दोपहर के भोजन के लिए ठीक समय पर घर वापस आएंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, 1 या 2 घंटे आराम करेंगे, सोएंगे, शाम को फिर एक चाय और सिगरेट पिएंगे और फिर दोबारा काम पर जाएंगे और 8 बजे, 8:30 वो रात के खाने के लिए घर वापस आते हैं और फिर शायद दूसरी चीजें पीना वगैरह और जो भी हो। खैर, ये उनकी प्राथमिकता है,
ये ठीक है, मैं शिकायत नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट, बिजनेस या आध्यात्मिक प्रक्रिया में बहुत सफल रहे हैं, वो लोग कभी नहीं जानते कि वो कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब दोपहर का आराम करते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा। तो वो लोग जो सक्सेस के लिए कमिटेड हैं, चाहे वो जो भी करते हों, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जहां भी थोड़ा आराम हो, वो वहां ठहर नहीं रहे, क्योंकि आराम तभी होगा जब वो आपको कब्र में उतारेंगे, तब आप बहुत आराम में होंगे। क्या आपने देखा है वो कितने आराम में हैं? एक बार जब वो मर जाते हैं, अगर आप उन्हें फेंक दें तो भी वो आराम में हैं, अगर आप उन्हें नीचे पटक दें तो भी वो आराम में हैं, भले ही आप उन्हें जला दें, अरे हाँ या ना, आराम आ जाएगा। अभी ये पक्का करने के बारे में है that there is profoundness of experience and there is impactfulness of activity. कि अनुभव की गहराई और काम की प्रभावशीलता हो, क्योंकि अगर उन्होंने आपको असीमित समय दिया होता तो आप वो सब कर सकते थे, कुछ भी गलत नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने आपको इंसान होने की इतनी जबरदस्त क्षमता के साथ इतना कम समय दिया, यही तो समस्या है। अगर प्रकृति ने आपको केचुए जैसा बनाया होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केचुए में कुछ गलत है, बस इसमें एक ही तरह की क्षमता है, ये सिर्फ उतना ही कर सकता है। एक केंचुआ पेड़ पर चढ़ने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो जानता है कि पक्षी उसे उठा लेंगे, उसकी ऐसी इच्छाएं कभी नहीं होती। ये सिर्फ पृथ्वी को रिसाइकल करना चाहता है। आप जानते हैं ये हमारे साथ साथ कई दूसरे जीवन के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका मकसद बहुत साफ है, खाना, प्रजनन करना और मरना, बहुत साफ मकसद। उस मकसद को पूरा करने की वो कोशिश करता है। वो मुझे नहीं लगता कि वो दोपहर में सोता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कई दोपहर मैंने केंचुए देखे हैं, वो सभी जोरदार सक्रिय थे। लेकिन एक इंसान बहुत सारी संभावनाओं के साथ आया है। Because of that, it needs a certain level of striving for a human being to forget about the world, to consider yourself successful. इसी वजह से एक इंसान को खुद को सक्सेसफुल मानने के लिए एक खास स्तर के प्रयास की जरूरत होती है। अगर आपकी सफलता की सोच ये है कि आप अपने पड़ोसी से बेहतर कर रहे हैं, तो मैं इसे बीमारी कहता हूं। यह सफलता नहीं है। आप खुश हैं, आपका पड़ोसी आपसे बदतर है, यह बीमारी है या सफलता? यह बीमारी है। पर आप जो कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं। चलिए इसे ही अभी के लिए सक्सेस मानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी से बेहतर हैं या किसी से खराब, यह सवाल आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन किसी तरह आपको लगता है कि आप अपने आप का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं और आपको अपने काम में खास संतुष्टि का भाव है। पर अगर आप बस अपनी आंखें बंद करके बिना कोई काम किए सिर्फ बैठने में सक्षम हैं, तो यह शानदार है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जिस स्थिति में अभी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बस अपनी आंखें बंद करके स्थिर नहीं हो सकते। व्यस्त होने के बजाय आप बेचैन हो जाएंगे। यानी ये नहीं कि आप सुधार कर रहे हैं, पर यह कि आप किसी तरह से पिछड़ रहे हैं। इस सफलता के बारे में समस्या यह है कि लोग हमेशा जजमेंट बनाते हैं। मैंने ये किया, वो किया, शायद ये काम नहीं किया, शायद ये एक गलती है, वो एक गलती है। जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है। देखें, एक समय आप बंदर थे, ठीक है? अरे ये मैं नहीं, ये वो अंग्रेज आदमी हैं, आपको पता है? चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि आप सब बंदर थे। एक समय आप बंदर थे, सिर्फ थोड़े ही समय पहले। क्या ये एक गलती थी जो आपने की थी कि आप एक बंदर थे, या ये विकास का सिर्फ एक खास चरण था?
क्या ये एक गलती थी या ये सिर्फ विकास का एक खास चरण था? क्योंकि आपका जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है जिसकी सीमाएं दूसरे प्राणियों की तरह पहले से तय नहीं होती। दूसरे जीव अगर उनके भोजन का ध्यान रखा जाए तो वो जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन का क्या करना है। क्योंकि इंसान संभावनाओं की ऐसी खुली समझ के साथ आया है, आप बिना सीमाओं के आते हैं, निश्चित नहीं आते। आपको खुद को ठीक करना होगा। अलग अलग लोग आप पर अलग अलग तरह की चीजें फेंकते हैं। हर तरफ से आपके माता पिता, टीचर, स्कूल, पड़ोसी और समाज और दुनिया हर तरह की चीजें आप पर फेंकती है। इस सारी गंदगी को इकट्ठा करना और खुद में से कुछ सार्थक बनाना, यही आपका काम है, वही आपकी सफलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको काबिल समझता है या नहीं। आपको लगता है कि आप एक सार्थक जीवन हैं, अभी के लिए काफी अच्छा है। दुनिया ना पहचाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप जानते हैं कि आप काबिल हैं। ये एक अद्भुत घटना है जो 250 या 300 साल पहले हुई। कर्नाटक के दक्षिणी भाग में एक भक्त थे और उनकी मां बूढ़ी थी। वो काशी जाकर विश्वनाथ की गोद में मरना चाहती थीं, या कहें कि शिव की गोद में मरना चाहती थीं। उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा था। ये एक चीज उन्होंने अपने बेटे से मांगी, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं वहां जाकर मरना चाहती हूं। तो वो आदमी अपनी बूढ़ी मां को लेकर चलने लगा। तो दक्षिण कर्नाटक से काशी तक जंगलों से होकर जाना एक बहुत लंबी दूरी थी और वो पैदल चल रहे थे। बुढ़ापे की वजह से मां बीमार हो गई, तो उसने उन्हें कंधों पर उठा लिया। उसकी शक्ति खत्म हो रही थी और सिर्फ एक ही तरीका था जिससे वो चलते रहे, वो बस शिव शिव बोलते गए। उन्होंने कहा, मुझे इस काम में असफल मत होने देना, बस एक ही चीज मेरी मां ने मांगी है, मुझे ये पूरी करने दें। मैं उन्हें काशी ले जाना चाहता हूं, हम बस आपके लिए ही वहां आ रहे हैं, मुझे शक्ति दीजिए। तब चलते चलते उन्होंने एक घंटी सुनी, तो उन्हें एक बैलगाड़ी और एक घंटी की आवाज आती सुनाई दी। तब उन्होंने धुंध से आती एक बैल से चलती बैलगाड़ी देखी, जो अजीब है। कर्नाटक में आप अकेला बैल देख सकते हैं, पर आसपास के इस्तेमाल के लिए लंबी दूरी के लिए हमेशा 2 बैल होते हैं। पर जंगल में अकेला बैल अजीब है। पर जब आप थके होते हैं तो इन छोटी चीजों की परवाह नहीं करते। गाड़ी आने पर उन्होंने चालक से विनती की। वो उनका चेहरा नहीं देख सके, धुंध थी और वो खुद को ढके हुए थे। मेरी मां बीमार हैं, क्या हम आपकी गाड़ी में सवारी कर सकते हैं? वैसे भी ये खाली ही है। उस आदमी ने इशारा किया तो वो दोनों चढ़ गए। गाड़ी जंगल के रास्ते से जा रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही सुगम सवारी है। ये उबड़ खाबड़ सवारी नहीं थी जैसा उसे होना चाहिए था। तब उन्होंने देखा पहिए घूम नहीं रहे थे, वो थमे थे और गाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने बैल को देखा, बैल बैठा हुआ था और फिर भी गाड़ी चल रही थी। फिर उन्होंने ड्राइवर को देखा, बस चोगा ही था, कोई आदमी नहीं था। उसने अपनी मां की ओर देखा। मां ने कहा, अरे बुद्धू, हम पहुंच गए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही जगह है, मुझे जाने दो। और मां ने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया
बैल, गाड़ी और ड्राइवर गायब हो गए। तब वो आदमी वापस लौट आया। लोगों ने सोचा, ओह, ये अपनी माँ को कहीं फेंक कर चला आया है, ये उन्हें काशी नहीं ले गया, ये तो बहुत जल्दी वापस आ गया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी माँ को कहाँ फेंक दिया? वो बोले, नहीं, हमें जाना ही नहीं पड़ा, शिव खुद हमारे लिए आए। उन्होंने कहा, बकवास। वो बोले, आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए आए और बस मेरा जीवन रोशन हो उठा है। मैं अपने भीतर ये जानता हूं, आपको नहीं पता तो आप जाने। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तो हमें कुछ दिखाओ, किसी तरह हमें दिखाओ कि तुमने शिव को देखा, वो तुम्हारे लिए आए। वो बोले, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने बस एक चोगा देखा, कोई चेहरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो खाली था। वो बस ऐसे ही बैठे थे, वो ऐसे बैठ गया और अचानक सबने बस उसके कपड़े देखे, वो वहां नहीं था। वो दक्षिण भारत के महान संत बने, वो यहां वहां घूमते रहे, वो जहां भी गए लोगों ने उन्हें एक खाली चेहरे के रूप में पहचाना। Devotion essentially means you have found a way to dissolve yourself. भक्ति मतलब आपको खुद को विलीन करने का एक तरीका मिल गया है। चाहे आपने एक देवता चुना हो, या एक आदमी या औरत या बच्चा, या अपने जीवन में कोई एक खास लक्ष्य, पर एक चीज साफ है कि कभी भी किसी ने अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया किसी चीज के लिए समर्पित हुए बिना। चाहे वो आर्ट हो, स्पोर्ट हो, म्यूजिक हो, पॉलिटिक्स हो, अध्यात्म हो, जो कुछ भी हो, जब तक आप समर्पित नहीं होंगे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि भक्ति भाव बिना आप अपनी खुद की सीमाओं को पार नहीं कर पाएंगे। आप किसके लिए समर्पित हैं मायने नहीं रखता। आप चाहे जिसके लिए समर्पित हों, यह आपकी भक्ति का गुण है जो आपको रूपांतरित करेगा। भक्ति के बिना सच्चा रूपांतरण नहीं होता। भक्ति के बिना एक इंसान कभी भी पूरी तरह सशक्त नहीं होगा। हर इंसान को भक्ति अनुभव करनी ही चाहिए और आपको यह समझना चाहिए कि यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। भक्ति एक ऐसा लव अफेयर है जहां आपके पास चुनाव नहीं है। Yes. एक लव अफेयर मतलब आपके पास ज्यादा चुनाव नहीं है, पर एक समय बाद आप उससे मुक्त हो सकते हैं। भक्ति एक ऐसा लव अफेयर है जहां आपके पास कोई चुनाव नहीं होता और आप उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। आप उसमें खींचे चले जाते हैं और कुछ नहीं रह जाते, क्योंकि आप कुछ नहीं रह गए तो आप सब कुछ भी हो गए।